Hello students, now welcome to the next part of our chapter, that is geography as a discipline. Earlier we have discussed why we read geography, why we study geography and what is the meaning of geography. What is the meaning of geography को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. What is the true meaning of geography? In previous video I have explained related to the geography that what is geography. Geography is the description of earth. हमने कहा physical features and the environment, social cultural features, ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं. They all are over dependent. Over dependency में हम ये कह सकते हैं कि there must be some relation with the social and the physical culture of nature. So geography is the description of earth. Many scholars used to call earth as a stage where we perform our activities. According to this, some scholars conclude that geography is the description of earth. Overall हम क्या कर रहे हैं, हम describe कर रहे हैं अर्थ को. कहीं पे mountains हैं, कहीं पे plateaus हैं, कहीं पे rivers, कहीं पे oceans, कहीं पे valleys हैं, तो हम describe कर रहे हैं हम अर्थ को. तो geography का मतलब क्या है? To describe that is geography. ठीक है. So first this word, the geography word used by a scholar, his name was the Frank Eratosthenes. Eratosthenes was a person who firstly used geography. He was a Greek scholar and he said, according to him, what is the meaning of geography? What is the meaning of geography? He wanted to explain. So he explained that geo, which means the earth, plus graphos, that is the description, and according to Eratosthenes, the geography means the description of the earth. Description of the earth. How? According to him, he gave the word geography. To study the earth, he gave the word geography. Geography का उसने मतलब समझाया कि why I am utilizing this word geography, what it stands for. So Greek language में ही जो geography शब्द का उसके according निकला उसका meaning, he used geography word for this. At present we used to call it geography. But geography stands for geo representing earth. यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में जियो शब्द जो होता है वो किसको एक्सप्लेन करता है? अर्थ को. और ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. तो व्हाट इट मीन्स कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मीन्स द ज्योग्राफी. ये किसने कहा? इरेटोस्थनीज ने कहा सबसे पहले. कौन था ये? एक ग्रीक स्कॉलर था. ठीक है. Now, scholars call geography the description of the earth as abode of human beings. आगे एराटोस्थनीज के बाद में और स्कॉलर्स ने भी इस बात को माना एंड दे फॉलोड हिम एंड दे डिसाइडेड कि हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे ह्यूमंस का और अर्थ का. तो हम क्या कोरिलेशन कर सकते हैं इनके बीच में? स्कॉलर्स कॉल जियोग्राफी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज abode of human beings. What is the abode here? Abode means the home of human beings. So we read geography correlate with the physical features, correlate with the humans, because humans home is the earth, and if we want to study humans we have to know the earth also. क्यों? कहीं पर कैसे फीचर्स हैं इंसान के? फीचर्स इन द सेंस उनकी सोशल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उन लोगों के फूड क्रॉपिंग पैटर्न क्या है. हर जगह पर अलग अलग होते हैं बच्चों. यानी कि फूड क्रॉपिंग पैटर्न सब जगह पर एक सा नहीं होता, सभी जगह पे अलग अलग दिखाई देता है. कहीं पर आपको फूड क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए, क्या हम रेगिस्तान में डेजर्ट की अगर हम बात करें तो क्या हम चावल खाने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते. हम राइस कल्टीवेशन के बारे में नहीं सोच सकते. क्यों नहीं सोच सकते? एज वी नो द क्लाइमेट इज नॉट suited for the cultivation of rice, which requires lots of water, where we feel the scarcity of water in deserted area. That's why these regions have no production of rice. So what it means, they wanted to correlate with the humans via nature. कि nature wise अगर कहीं पर इंसान रहता है तो उसका कोरिलेशन क्या है, या वो जो उसका होम है उसमें उसके कोरिलेशन को हमको करके कैसे पढ़ना है, वो किस तरीके की चीज़ें डिफाइन करते हैं. हर ह्यूमंस के फीचर्स एक से क्यों नहीं होते? क्योंकि
हर किसी की लोकेशन, हर किसी की फिजिकल अपीयरेंस, हम पर्सनल नहीं, हम अर्थ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, वो क्लाइमेटिक कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हर लोगों की एक जैसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। इज इट क्लियर? नाउ द नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस रिलेट विद ज्योग्राफी। नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस relate with the geography. How we can say that natural science and social science relate with the geography? What it means, natural science यानी कि जो कुछ natural science में हम पढ़ते हैं, natural science and the social science, the two branches or the two subjects or the two parts are correlating with the geography. It means we can take geography as a subject which can be correlate with the science branches also and for the social science branches also. It is correlating to the science branches like the oceanography, meteorology, oceanography. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो साइंस के लिए होती हैं। बायोलॉजी, ठीक है, या बॉटनी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो कोरिलेटेड विद द ज्योग्राफी. सो हियर दे आर कनेक्टेड विद द नेचुरल साइंस. As geography discipline, it is connected with the natural science. Second thing, it is connecting with the social science. How it is connecting with the social science? Social science has different subjects, as we know that the politics, history, economics, and sociology. So these subjects are also correlating with the geography. For example, if we study the हिस्ट्री की कोई भी चीज़ें हम उठाकर देख लीजिए, कॉलोनियल पीरियड में कैसे ब्रिटिशर्स भारत आए, तो वो ब्रिटिशर्स भारत आए उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं जोग्राफिकल सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कि पीपल, जोग्राफिकल कंडीशंस. हम ये कहते हैं ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया बाय द अट्रैक्टिंग ऑफ स्पाइसेस एंड कॉटन. वो स्पाइसेस कॉटन की अट्रैक्शन में आए, तो क्या वो यूरोप में नहीं होती थी, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी. तो सम जोग्राफिकल कंडीशंस आर. तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी हैव टू नो वेयर द ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम. अलॉन्ग विद ब्रिटिशर्स, एज वी नो, पोर्तुगीज, डचेस, ठीक है, फ्रेंच ऑल्सो अराइव्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड. सो व्हाई दे केम इन इंडिया? व्हाट वर देयर मेन मोटिव टू केम इन इंडिया? Their motive was to collect the spices, collect the cottons and sold them at the good price in Europe. But why they arrived in India? Because of the geographical conditions. यहाँ पर जितने अच्छे फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण आपके देश में स्पाइसेस मिलते हैं, वो वहाँ नहीं मिलते थे. So we can connect geography with the history. Clear? Politically अगर हम कनेक्ट करें तो पॉलिटिकली बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, like the political boundaries. If we consider राजस्थान को अगर हम कंसिडर करें तो राजस्थान को कहेंगे कि राजस्थान की जो बाउंड्री है, राजस्थान की बाउंड्री को हम इसके साथ को रिलेट करेंगे तो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, यानी कि अशोक गहलोत जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो कहाँ तक अपने जो है लॉ एंड ऑर्डर्स एक्टिव कर सकते हैं, वो कहाँ प्रैक्टिस में ला सकते हैं? सिर्फ बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान. तो व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान? वी मस्ट नो द ज्योग्राफी. वी मस्ट नो द ज्योग्राफी फ्रॉम हाउ मच रीजन we have captured under the Rajasthan, which are the boundaries we are sharing with the different states of India. Clear? So geographically, political science also you can connect. Sociology, the social culture behavior of peoples can also correlate it with the physical features or the geography. How we can correlate it? We can correlate it कि ह्यूमंस में जो सिस्टम पाया जाता है कि कहीं पर बहुत सारे लैंग्वेजेस या गॉड और गॉडेसेस इन सब का क्रिएशन हुआ, या उन लोगों का फेथ उसमें ज़्यादा हुआ, उन लोगों के कस्टम्स, गोइना सिस्टम, ये सब कुछ ऐसे था. तो यहाँ पे ज्योग्राफी कैसे काम करती है? ज्योग्राफी काम करती है कोरिलेटिंग विद द पीपल्स थॉट दैट कि हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये पीरियड हमारी गर्मी का, ये सर्दी का होता है, इतने पीरियड में हमको ये काम करना होता है, इस काम को करने के लिए कितने लोग काम करेंगे और इस काम को करने के लिए हमें किस किस तरीके का सपोर्ट चाहिए. सो फॉर दैट दे क्लासिफाइड द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. व्हाट कंडीशन? द ज्योग्राफिकल कंडीशन. क्लियर? So this is the important part we have, that is the what is geography. So बच्चों geography क्या है और geography क्यों पढ़नी है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे विद द रिलेशंस, यानी कि geography रिलेशंस विद द अदर सब्जेक्ट्स, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इतना ही, और इसको पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया. ओके.